Hello children, welcome back to the channel. Today we'll do the first chapter, that is the third level from Vistas for class 12th. In this video we would be discussing the explanation and important words. This chapter has been narrated by Jack Finney. Before we read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? Have you ever had any curious experience? Curious means interesting, keen experience which others find hard to believe, which is unbelievable for others. So this is the question for all the readers कि क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो काफ़ी क्यूरियस हो, जो दूसरों के लिए अनबिलीवेबल हो, जिस पर दूसरे लोग विश्वास न कर सके, ऐसा कुछ? तो ये सबसे है क्वेश्चन। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है एंड अपना अपना एक्सपीरियंस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस यू विल डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन. Let us go through the paragraph. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. In this chapter, the main character is Charlie. Charlie was a citizen of United States of America, USA. He was belonging to New York. He says that the president of New York Central and the New York, these are two places in USA. He says that the presidents of these two places, New Haven and Hartford railroads, will swear on a stack. They would be taking oath, keeping their hand on the stack of timetables. Stack means chart or paper of timetables, that there are only two. He talks about two railroads on Grand Central. Means this chapter is a science fiction, and this chapter has been narrated with thrills and adventure as well as imagination. This is based on imagination and imaginary concept. There is a person whose name is Charlie, who is the main character for this chapter. He talks about strange and unbelievable fact that he experienced in his life. He talks about that existence which is hardly believable. He says that there are three railroads on Grand Central, but as far as we concern, actually there are only two railroads, because he says as well the presidents of two states, New York and the New York, would be taking oath, keeping their hands on the stack of timetables, that there are only two. Everybody knows that there are only two railroads on Grand Central, but I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central station. Because Charlie says that I went there. Okay, the third level. Here, what does it mean the third level refers to? Third level का क्या मतलब है? Third level means a level, a place which is hardly believable for others, but
The narrator has gone there. The describer, Charlie, has gone there. He says that there are three labels. I have taken the obvious step. Maybe people would be believing that I have gone to be crazy, I have gone to be mad. I talked to a psychiatrist, friend of mine, whose name was Sham, among others. Charlie says that I had a conversation with my friend who is a psychiatrist. Okay? जो मनोविज्ञान के बारे में जानता हो. He says, I told him about the third level at Grand Central Station. He said it was a waking dream wish fulfillment. Charlie says that I told him about the third level. When Charlie talks to Sham about the third level at Grand Central Station, Sham, Charlie's friend, tells him that it was a waking dream wish fulfillment, nothing else. Means ये एक विश का फुलफिलमेंट है, जो कि एक सपना है, जो कि एक ड्रीम है. एक्चुअली third level, third railroad at Grand Central Station does not exist. तीसरा कोई रेल रोड वहाँ पर है ही नहीं. This is the reality. But Charlie was talking. चार्ली उस थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा था कि मैंने तीसरा रेल रोड देखा ग्रैंड सेंट्रल पर. इस चीज़ को जब वो अपने फ्रेंड से बताता है तो फ्रेंड उसका बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम एक ड्रीम देख रहे हो जो कि एक विश का फुलफिलमेंट है, एक इमेजिनेशन है. वाकई में तो तीसरा रेल रोड वहाँ पर नहीं है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. उसने बताया कि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं नाखुश हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. और इसकी वजह से मेरी बीवी भी थोड़ा परेशान हुई कि मैं बहकी बातें करने लगा हूँ. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंज एंड ओड थिंग्स इन माई लाइफ. बट ही एक्सप्लेन्ड दैट he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. उसने बताया that this modern world is full of insecurity. There are insecureness, fear, war, worry, obstacles and problems and all the rest of it that make us troubled, जो हमें बहुत परेशान करती हैं. And that is why I just want to escape. और इसलिए मैं escape करना चाहता हूँ. escape means इन चीज़ों से बाहर जाना चाहता हूँ, इन जद्दोजहद से मैं बाहर जाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम ना हो. well, who does not? कौन ऐसा चाहेगा भाई? everybody wants to escape. कौन नहीं चाहेगा जो इन प्रॉब्लम से, इन इनसिक्योरनेस से, इन फियर से, इन वार से, वरीज से बाहर आना. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. सभी लोग एस्केप करना चाहते हैं. बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन वो लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते वेयर आई वेंट, जहाँ पे मैं गया था. बिकॉज आई पर्सनली वेंट देयर एंड इट एग्जिस्ट्स. और ये है, बट इट इज़ हार्डली बिलीवेबल फॉर अदर्स. लेकिन ये दूसरों के लिए तो बिल्कुल बिलीवेबल नहीं है. लोग इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, वेन एवर वी टॉक अबाउट स्ट्रेंज एंड फनी टू अदर्स दे वुड नॉट बिलीव. अभी हम ऐसा बोलते हैं कि पता है मैंने एक इंसान देखा जिसकी 8-10 आँखें थी, 6-7 पैर थे और 3-4 पेट थे. मीन्स स्ट्रेंज एंड ओड थिंग, जो कि बहुत अजीब हो. तो ऐसी चीज़ों पर किसी को बिलीव नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं करेगा. ऐसा ही था.
चार्ली जब बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा रेल रोड मैंने देखा, एक तीसरा प्लेटफॉर्म देखा, तो इस चीज़ पर काफ़ी हैरत अंगेज़ भरी निगाहों से देखता है उसका दोस्त, और ये बताता है कि तुम वास्तविकता से स्केप करना चाहते हो, तुम वास्तविकता से बिल्कुल दूर होना चाहते हो। यू नो द टाइम एंड स्पेस, ठीक है, रियलिटी एंड इमेजिनेशन मीन्स टाइम ट्रेवल करना। यहाँ पर चार्ली जो है वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, स्पेस बीच में है, वो 20th सेंचुरी का आदमी है, बट ही टॉक्स अबाउट 19th सेंचुरी, कि वो 19वीं शताब्दी में चला गया था। बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और ये कारण था जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने ऐसा कहा, और मेरे जितने भी दोस्त थे सभी मेरे साथ अग्री भी हुए। ठीक है, आई मीन क्यों एग्री हुए, किस चीज़ को लेकर एग्री हुए? सैम की बात को लेकर एग्री हुए। ठीक है, मेरी जो बात थी वो तो ये थी कि तीसरा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, जो कि ऐसा तो है नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तीसरा था नहीं वहाँ पे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन चार्ली के हिसाब से वहाँ पे तीसरा रेल रोड था। ठीक है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लैम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग, और वो सारे लोग यही कह रहे थे कि हाँ तुम इसीलिए तो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, ये भी एक वे है वास्तविकता से दूर होने का। दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, ये भी टेम्पररी, कुछ समय के लिए, रिफ्यूज़, गिव अप, टू स्टे सेफ एंड स्टे सेफ शेल्टर, जो कि इनसिक्योरनेस से दूर हो सके। ठीक है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सेफ फील कर सकें। ये काम भी वैसा ही है कि तुम वास्तविकता की दुनिया में नहीं जी रहे हो। स्टैम्प कलेक्शन करना, स्टैम्प बेचना, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होता, फिर भी तुम ये काम करते हो। मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन ये काम तो मेरे दादाजी भी करते थे, स्टैम्प सेलिंग करना, तो उनको तो नहीं लगता है मुझे कि वो वास्तविकता से दूर होना चाहते थे। आई डो नॉट थिंक सो दैट ही वॉन्टेड टू गो फ्रॉम फार अवे फ्रॉम रियलिटी, वो दूर जाना चाहते थे वास्तविकता से, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, चीज़ें प्रिटी अच्छी थी, पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी, तो वो क्यों दूर जाना चाहेंगे? एंड आई एम कैरिंग ऑन दैट बिजनेस, और मैं उन्हीं का तो बिजनेस कर रहा हूँ। ही यूज टू कलेक्ट एंड सेल स्टैम्प्स एंड आई एम डूइंग सो, मैं भी वही कर रहा हूँ। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैं जानता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने अपना जो काम था, जो अपना धंधा था, वो मुझे दे दिया, मैं आज ये काम कर रहा हूँ। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, एंड स्टैम्प कलेक्शन इज़ अ नाइस थिंग, ये तो अच्छी बात है। ब्लॉक्स आर फुल ऑफ प्रैक्टिकली every US issue, first day covers and so on. Blocks of 4, what does it mean? स्टैम्प आप लोगों ने देखा होगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 4, 5 ऐसे करके आता है, तो छोटा छोटा स्टैम्प होता है। ठीक है, स्क्वायरी शेप में, तो एक स्टैम्प हुआ, फिर 4 स्टैम्प को एक ब्लॉक में अरेंज करना। ठीक है, जैसे वो एक ही में चिपका हुआ होता है स्टैम्प जो होता है, तो 4 स्टैम्प का एक सीरीज़। ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ 4, particularly every US issue, and everybody who is fond of collecting stamp wants to have a series of 4 stamps. तो ये एक शौक़ था लोगों का, जो लोग शौकीन थे, जो स्टैम्प सेलर थे और कलेक्टर थे, वो स्टैम्प को कलेक्ट कर लेते थे। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर्स वो होता है कि एक इन्वेलप में जो स्टैम्प सेलर हुआ करते हैं, दे कीप अ ब्लैंक पेज इन द इन्वेलप, डेटेड इट, एंड दे फॉरवर्ड इट टू देयर ईमेल्स टू रिकॉल एंड मेमोराइज द डेट व्हेन द स्टैम्प वाज लॉन्च्ड। जब स्टैम्प लॉन्च हुआ, उस डेट को रिकॉल करने के लिए वो ऐसा करते हैं। एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट collected stamps too,
थोड़ा सा सैटारिकल होकर वो बोलता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो कि बहुत बड़े इंसान हैं यूएसए के, वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। आप सारे लोग जानते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। We would be covering the next episode in the next video. Keep practicing and bye. See you.